Now, myself is Ravinder Singh. Now, today we have to discuss about the fuels principle of management. Now, who is the fuel? Henry Fayol was born in France in 1841. He got the degree in mining engineering and starting working as an engineer in a coal mining company. In 1888, he was promoted as a managing director of the company. On that time, the company was in situation of insolvency. He accepted the challenges and applied the managerial techniques to bring out the company from the situation and he get the success. So that is the person who take over the charge when the company is in the not in position to pay over liabilities. So then he giving the different techniques and different principle of management. With the application of this management principles, he got the success. Now today we have to discuss about these principles of management. Now, first there is a principle of division of work. Division of work. Division of work refers to dividing the work into a compact jobs and allocating these compact jobs to a different individuals. My means to say the whole organization work, either managerial work or a technical work, should be divided into smaller jobs, and task involved in doing each such job should be determined. It leads to specialization, speed, efficiency and accuracy of work. In simple words कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें चाहे मैनेजरियल हो, चाहे टेक्निकल वर्क हो, कैसा भी हो, जो बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, वो जॉब्स को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है. टास्क को डिवाइड क्यों किया जाता है? द टास्क विल बी इज सिमिलर और रिपीटेटिव परफॉर्मेंस हेल्प्स इन गेनिंग स्पीड. कि उसी टास्क की हेल्प से हम एक्यूरेसी ला सकते हैं. अब ये वर्क को डिवाइड कैसे किया जाए? द वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड द स्किल्स एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. हर तरह से जिस तरह भी हम बेस्ट पॉसिबल वे है, जो व्यक्ति जिस लाइक के जिस तरह का काम कर सकता है, उस जिस चीज़ में उसका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उसको बेटर एक्सपीरियंस है, उसमें हम उसको उस वर्क को हम करवा सकते हैं. उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एज वर्क इज डिवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन. कि जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वर्क देते जाएंगे, वो एम्प्लॉय उतना उस वर्क में स्पेशलाइज होता जाएगा. उससे क्या होगा? इट सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. उसे जैसे वो सिंपल वर्क करता जाएगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी. एज सेम वर्क परफॉर्म बार बार रिपीट, कहता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जैसे से वो प्रैक्टिस करता जाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस आती चली जाएगी, काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा, एफिशिएंसी उसकी बढ़ती जाएगी. अब अगर हम ये बात करें कि अगर हम नहीं करते, वायलेशन ऑफ division of work, if we are not following the principle of division of work, there will be a lack of efficiency and specialization. जो एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो कम होती चली जाएगी. एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और वो ज़रूरत से ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट करेगा. उसे होगा क्या कि वी कांट अचीव देयर गोल्स. नाउ नेक्स्ट, सेकंड इज अथॉरिटी. Authority is the right to give the orders to their subordinate. Authority is also known as its power to take the decision in favor of our organization when the objectives are achieved. Now, what is a responsibility? Responsibility is the duty, or in another words, we have to says that ki रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क. कि आपको अपनी अथॉरिटी को इस तरह यूज़ कर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक पेयर में होती हैं. दीज आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ व्हीकल.
जो पैरेलल काम करती हैं. In simple word, we have to say that there should be always be a balance between authority given and the responsibility of an employee. This is because if the authority is more than responsibility, the employees are likely to misuse it, or whereas the authority is less than the responsibility, he or she will be unable to do the desired work. मीन्स अगर अथॉरिटी ज़्यादा है तो भी ठीक नहीं है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है नहीं है तो भी ऐसा ठीक है. तो दोनों एक दूसरे के पेयर में होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एक साथ काम करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन अ 1 वीक, बट ही इज नॉट गिविंग अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल. एक आदमी को अगर 100 यूनिट्स बनाने का काम दे दिया गया कि एक हफ्ते में उसने 100 यूनिट्स बनाने हैं, बट उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई. इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम, एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स एन अ टाइम. मीन अगर उसको रॉ मटेरियल नहीं मिला टाइम पे तो वो नहीं करेगा, अथॉरिटी नहीं है उसके पास. तो जब अथॉरिटी नहीं होगी तो हाउ कैन यू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ authority and responsibility, what are the positive and negative? It prevents misuse of authorities, कि authority का misuse नहीं होगा. It's help in fixing the responsibility of every employee. So वो अपने जॉब वर्क के लिए अकाउंटेबल होंगे, किसने काम किया है किसने काम नहीं किया. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. Consequence of violation that earlier discussed that. If responsibility exceed authority, अगर responsibility authority से ज़्यादा है, then subordinate cannot perform his duties. वो अपनी duties को पूरा नहीं कर पाएगा. If authority exceed responsibility, authority ज़्यादा है responsibility कम है, तो क्या होगा? Subordinate may misuse it. जिसको ज़्यादा authority मिल जाती है, responsibility होती नहीं है, accountability होती नहीं है, obviously वो misuse ही करेगा. Next, there is a unity of command. Unity of command, according to this principle, each subordinate should receive orders and accountable to one and only one superior. या one and only one superior सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति ऑर्डर देगा. There should be a one and only one boss for every individual employee from whom he should receive order and responsible to it. Dual subordination should be avoided. Double नहीं होनी चाहिए. If a subordinate receive order from more than one superior, he will find it extremely difficult to decide as to who he has to obey first. Means अगर एक सबॉर्डिनेट को, एक एम्प्लॉय को अगर 2 बॉस होंगे तो डेफिनेटली जो ड्यूल कंसेप्ट हो जाता है, ड्यूल सबॉर्डिनेट को क्या होगा? इट्स क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन इन द सबॉर्डिनेट्स एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर. मेरे सबॉर्डिनेट के अपने दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो किस बॉस का ऑर्डर फॉलो करे, किस बॉस का ऑर्डर फॉलो ना करे. तो इस कारण से मैनेजरियल लेवल में भी आपस में मैनेजर में ईगो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. दिस इज नॉट गुड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को 2 टीचर ने एक साथ ऑर्डर दे दिया, अब वो किस ऑर्डर को ओबे करे? 2 टीचर ने एक साथ एक ही टाइम में काम करने को दे दिया. इट कांट फॉलो इट. If the employee of another example, if an employee of production department is asked go slow in the production to maintain the quality standard, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये कहा गया कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखें चाहे प्रोडक्शन स्लो हो, बट द सेल्स इंचार्ज इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉय टू फास्टन द प्रोजेक्ट टू मीट द पेंडिंग ऑर्डर. अब सेल्स मैनेजर कहता है कि नहीं जी, पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा हैं, मीन्स हमारी सप्लाई कम जा रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कुछ भी हो जाए. सो दिस मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजर आ गया.
अब सबॉर्डिनेट जिसने और एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, बेटर क्वालिटी या डू गेट मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स. सो देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट्स. देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट. कब? जब एक व्यक्ति को एक टाइम में एक ही बॉस होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और एम्प्लॉई के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, अगर आप इसको नहीं मानते हैं, you can't follow the unity of command, it create the confusion for a subordinate as to whose order to be compiled. वो subordinate किसका ऑर्डर माने, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी और उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से एक आ जाएगी, दैट इज़ द लैक ऑफ डिसिप्लिन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं हो पाएगा, पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगा, किसका ऑर्डर माने किसका ना माने, हु इज़ द बेटर वन. दैट शुड बी डन इन ओवर ऑर्गेनाइजेशन. Now, unity of direction. Unity of direction implies that there should be a one head and one plan for a group of activities having the same objectives. अगर एक ही objectives हैं, एक ही objectives के लिए आपके plans, आपकी direction, unity होनी चाहिए. जो रोज अपनी डायरेक्शंस को चेंज नहीं करेंगे. अगर आप अपने प्लान्स, अपने प्रोग्राम्स को डेली चेंज करेंगे तो इट्स क्रिएट द नॉट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बढ़ जाएगा. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये वहाँ आ जाती हैं जहाँ पर आपकी यूनिटी. अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? यूनिटी ऑफ कमांड में था एक सबॉर्डिनेट को एक बॉस एक टाइम पर ऑर्डर देगा, मीन एक सबॉर्डिनेट और एक बॉस को वन एंड वन कंसेप्ट को यूज किया है. बट यहाँ पर जो वो गाइडलाइंस, डायरेक्शंस मींस गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेशन, ये सारा एक अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इसमें यूनिटी होनी चाहिए. ये नहीं कि आज मेरी कोई भी प्लान है, कल मेरा वो प्लान चेंज हो गया. सो उससे ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव नहीं हो पाएंगे. नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स? कि इट एम्फेसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स एंड हेल्प्स इन अचीविंग दैट. अगर हमारे कॉमन गोल्स हैं, हमें मिलजुल कर काम करना है, कोऑपरेशन से काम करना है, तो हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑपरेशंस विच रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो होगी अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम करेंगे. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन क्या होगा? उसे एफर्ट्स के डुप्लीकेशन हो जाएंगे. हमारे जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, जिससे जो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर सकते हैं. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वो सारी चीज़ें मीन यू कांट अचीव योर प्लान्स, यू कांट फॉलो अप योर इम्प्लीमेंट योर प्लान्स अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है. तो नाउ देयर आफ्टर इससे एम्प्लॉइज़ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आज कौन सा प्लान था, कल कुछ और हो गया है. मैनेजर में भी आज मैंने क्या कहा था, यू गेट कन्फ्यूजन इन द माइंड आल्सो. सो देयर इज नेक्स्ट subordination of individual interest to a subordination of individual interest to a general. According to this principle, interest of the organization as a whole must prevail over the interest of the individual or the employees. इसमें यह है कि आपको किसी एक के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना, आपको जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना है. In an organization, every individual has his own interests. This principle demands that each individual should be sacrifice his personal interest for achieving the organizational goal. मीन हर एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट छोड़ के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए काम करना है. ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर देन द टू इंडिविजुअल्स. In case individual interest and organizational interest differ, it is a duty of the management to reconcile them. कि अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कहीं क्लैश कर रहे हैं, कहीं डिफर हो रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी हो जाती है उसको रिकंसाइल करना. फॉर एन एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग द रॉ मटेरियल, in an example, before buying raw material, the manager must compare the prices of the qualities of all the suppliers.
and give order to best rather than giving the order to his own relatives or non-person by misusing the power. Means एक मैनेजर को कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, कोई कंप्यूटर्स खरीदने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो उसके लिए उन्हें ये देखना है कि कौन उसको अच्छी क्वालिटी के देगा, कौन बेटर आफ्टर सेल सर्विस भी देगा, बेस्ट कौन देगा. ये नहीं कि उसका कोई रिलेटिव है उसको उसने ऑर्डर दे दिया. सो इस तरह से क्या होगा कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट वायलेट हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स? इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स अगर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं एम्प्लॉइज के जो मैनेजमेंट के साथ है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे. व्हाट अबाउट देयर वायलेशन? अगर आप इसको नहीं मानते, द फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव हिज गोल्स. फर्म्स को गोल्स अचीव नहीं होंगे. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाएगा. मीन्स एम्प्लॉइज में मैनेजमेंट में अपने कॉन्फिडेंस लूज हो जाएंगे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफर किया कंपैरेटिव टू द जनरल इंटरेस्ट. Next, there is discipline. Now, what is the discipline? Discipline refers to obedience to rules and regulation of the organization. Means और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना है. उसको ओबीडियंस का मतलब उसको मानना है, उसको रिस्पेक्ट करनी है. वो किस लिए? इट रिक्वायर फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन मीन्स ये नहीं कि आप पे वो किया जा रहा है, थोपा जा रहा है. डिसिप्लिन मीन्स आपको अपनी विलिंगनेस से ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करनी है, ओबे करनी है. लाइक जैसे हम अपने घरों में बड़ों को ओबीडियंट होते हैं, स्कूल्स में टीचर्स के लिए ओबीडियंट होते हैं, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए भी उसको ओबीडियंट होना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, Fuel says that discipline requires a good supervisor at all levels. Clear and fair regulation agreements होंगे. Rules के लिए judicial application of penalties हो सकती हैं. Discipline must be for the all enterprises at the all level. मैं 3 आपके जो level of management है, top level, middle level और lower level, सभी levels पर इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके होने से आप अपने अचीवमेंट ऑफ गोल्स वेरी इजीली कर सकते हैं. डिसिप्लिन also refers to the obedience of organization rules and employment agreement. It is required for the systematic working of the organization. It also requires for the good superiors at all levels, clear and fair agreement, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. ये सभी चीज़ें इस पे लागू होती हैं. इन सिंपल वर्ड्स, द एम्प्लॉय मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस. कि एम्प्लॉय अपनी कमिटमेंट्स कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, वो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करें, सम्मान करें. ऑन द अदर हैंड, superior must also meet the commitment by meeting the promises of increment, promotion, wage revisions. ये भी एक तरह से discipline. So what are their positive effects? Smooth and systematic functioning of the business. कि business के functions smoothly working करेंगे. Better relation होगा between the management and the employee. वायलेशन, अगर आप रूल रेगुलेशन तोड़ोगे उससे क्या होगा? डिसओबीडियंस मीन अगर आप उसको नहीं मान रहे, सो दैट मीन्स यू कांट अचीव योर गोल्स. अगर आप अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की बात नहीं मानते, दैट मीन्स यू आर नॉट अचीविंग देयर गोल्स. जो आपके रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय मे नॉट बी कोऑर्डियल,
कोऑर्डिनेटिंग का मतलब आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। ऐसा आपने स्कूलों में भी, क्लासेस में भी देखा होगा। अगर आप अपने टीचर्स को ओबे नहीं कर पा रहे, टीचर्स के रूल रेगुलेशन या स्कूल के रूल रेगुलेशन को मान नहीं रहे, इससे आपका मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, टीचर्स के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हो पाते।